Namaskar, Om Namah Shivaya. Welcome to Kalpurush Astrology, and this is our uh, continuous session of predicting snapshot prediction through Nadi astrology. And this is Rahu Ketu special number 2. But before going to this prediction, I have some discussion about my upcoming course. And my upcoming course is Snapshot Prediction through Vedic Astrology. See, Vedic astrology is very confusing, it is said by many astrologers. And after reading 10-15 years of Vedic astrology, they can't even predict some basic things. I'm not talking about every learned astrologer, I'm talking about the general astrologers because they confuse and they have problem, and for that reason the other branches of astrology has popularized, and it is said that they are very precise, they are very accurate also, and it is not confusing as such as Vedic astrology. But from my last course, which is going on now, that is a divisional charts course, I have started to make things in favor of the real Vedic astrology, which is not at all very complex, very easy, and very easy to understand and very easy to predict. On that way, I am starting this new course. Who are interested to join or learn about the course may join my WhatsApp community. The link is given below. तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 बहुत सुंदर प्रेडिक्शन जो राहु केतु से जुड़ा हुआ होगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आज का पहला प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मार्स प्लस केतु है, मार्स के साथ केतु का कंजंक्शन है, अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल नेटिव, तो ये दिखाता है कि उनके हस्बैंड के फिजिकली वीकनेस रहेगा. ये प्रेडिक्शन हम तब भी करेंगे जब केतु नवमांश में मार्स के वर्गा में होगा. If in someone's chart Mars and Ketu conjunct, especially in case of female native, it shows that husband may have some physical weakness. And if the Ketu is placed in the Navamsh of Mars, it confirms the result. आज का दूसरा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न, जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है, सैटर्न जुपिटर केतु का कंजंक्शन या एस्पेक्ट किसी ना किसी तरह से अगर है, तो इसको गुरुजी ईश्वरांशा बताए हैं. गुरुजी मतलब गुरु आरजी राव जी ईश्वरांशा बताए हैं सैटर्न, मार्स एंड केतु को. कहीं किसी भी तरह से ये कनेक्शन बने तो वो होगा. और ये व्यक्ति जो है बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धार्मिक स्टडीज ये करते हैं. इफ इन someone's chart Jupiter, Saturn and Ketu conjunct, it's Ishwaramsha, and the native usually studies the spiritual, divine scriptures, and also interested in astrology and other divine sciences. आज का तीसरा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न, मून और केतु कंजंक्ट है, किसी ना किसी तरह से सैटर्न, मून और केतु का कनेक्शन है, ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा नॉलेज होगा, कुछ ऐसा ज्ञान होगा जो और किसी के पास नहीं होता. बहुत स्केयर्ड कुछ चीजें वो जानेंगे जो सुपर नेचुरल भी हो सकता है, जो दूसरे लोगों को जिसकी फीलिंग्स नहीं होगी. इफ इन someone's chart Saturn, Ketu and Moon are conjunct, the native will have some very scared and secret knowledge that is not known to the other people in the world. आज का पंचम फिफ्थ प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न के साथ राहु का कंजंक्शन है, सैटर्न के साथ राहु का कंजंक्शन है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अर्निंग अनएथिकल हो सकते हैं, ये हम जानते हैं, या व्यक्ति फॉरेन लैंड में का जा सकता है, ये भी हम जानते हैं. पर जो इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है आज के वो ये है कि सैटर्न के साथ केतु होने से व्यक्ति पैसे कोई सीक्रेट जगह में रखते हैं,
घर में, और वो उसको भूल जाते हैं. So it is a very interesting prediction that if Saturn and Rahu conjunct, we usually know that it is a combination of unethical earning. It's a combination of earning from foreign countries. We know it. But the special prediction is if Saturn and Ketu conjunct, the person keeps the money in a safe place in his or her house and somewhere, especially under the tablecloth, and forgets it. So it's a special, beautiful thing about Saturn Rahu combination. If also Saturn Rahu not conjunct, but Saturn in its progression, Saturn will touch the Rahu first, then also this prediction comes true. And if Venus is suspecting this combination, then the native suddenly discovers, oh, I have placed the money I have kept for a long time, I have found it out. Because whenever Venus is aspecting this Rahu Saturn combination, then the native will get the money after a long time. And he or she will be very happy. Oh, I have kept it and I have now found it. Okay. So it's a very interesting combination, and this combination usually you find in many people's chart. आज का पंचम प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सन, सैटर्न और राहु है, सन सैटर्न राहु होता है, तो ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति के जो पिताजी है, पिताजी के जो अर्निंग, वो अर्निंग अनएथिकल वे में हो सकता है, या फिर पिताजी कोई फॉरेन रिलेटेड काम कर सकते हैं. If in someone's chart Sun, Saturn and Rahu conjunct, then the father will have money, earn money from some unethical sources, or also he may be linked earn money from the foreign countries. आज का सेवेंथ प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मर्क्यूरी प्लस राहु है, मर्क्यूरी प्लस राहु दिखाता है कि इस व्यक्ति का जो छोटा भाई या सबसे छोटी बहन होगी, सबसे छोटा भाई या सबसे छोटी बहन जो है वो मर्क्यूरी है, तो वो घर में सबके खिलाफ जाके कोई ना कोई डिसीजन जीवन का जरूर लेंगे. इफ इन someone's chart Mercury and Rahu are conjunct, it shows that the youngest brother or sister of the family will go against the family tradition and take decision in his or her own mind, not following the tradition of the family. आज का एट्थ प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मून के साथ केतु का कंजंक्शन है, मून केतु कंजंक्शन, ये तो आप जानते हैं, ये ऑल्सो इट इज ए कंजंक्शन ऑफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रहण योगा. आप जानते हैं इसको ग्रहण योगा भी बोला जाता है, पर मून केतु कंजंक्शन बहुत अच्छा पिलग्रिमेज योगा है. ये व्यक्ति पिलग्रिमेज सेंटर में जीवन में बार बार जाएंगे. इफ इन someone's chart moon ketu conjunct, it's a very good pilgrimage yoga, and the native will definitely visit pilgrimages multiple times his or her life. आज का नवम प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में वीनस के साथ राहु का कंजंक्शन है, हम जानते हैं वीनस राहु कंजंक्शन स्पेशली जब मार्स उसके साथ होता है, या मार्स के द्वारा ये कंजंक्शन के साथ मार्स का कोई भी रिलेशन होता है, कंजंक्शन एस्पेक्ट, तो इस व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये हम जानते हैं. पर जो यूनिक प्रेडिक्शन है वीनस राहु का वो ये है कि ये व्यक्ति जब ट्रेन में या फ्लाइट में जाएंगे, बस में जाएंगे, जब ये किसी का तरह से मूवमेंट में होंगे, तब इस व्यक्ति को लव अफेयर होगा, और उस मूवमेंट से ये लव अफेयर को बहुत अच्छा पॉजिटिव जो रिजल्ट है उसको व्यक्ति को मिलेगा. इफ इन someone's chart Venus Rahu conjunct, that we know that a native may have extramarital affair when Mars is also involved in this conjunction. But if only Venus Rahu conjunct, the native may have affair when traveling to long distance, might be through train or flight, and that travel will give extra power or extra support to the love affair. I think it will give more nutrition to the love affair.
आज का 10वां लास्ट प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मर्क्यूरी प्लस केतु है तो हम जानते हैं कि ये व्यक्ति को बहुत ये कॉमर्स रिलेटेड ज्ञान इनके पास होगा, नॉलेज होगी, लॉ की नॉलेज होगी, ये सब हम जानते हैं। पर इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मर्क्यूरी जो है वो वाणी का भी कारक है। केतु होने से उनका जो वाणी वो कम हो जाती है। सो मर्क्यूरी केतु पर्सन यूजुअली कम बातें करते हैं। If in someone's chart Mercury Ketu conjunct, the native usually speaks elegantly. तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये राहु केतु का जो सेकेंड एडिशन ये अच्छा लगा। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया, फिर से बताता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेके लोगों के मन में बहुत सारा शंकाएं हैं और लोग ये समझते हैं, यूजुअली मैं साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छे मास्टर्स हैं वो तो जानते हैं, सबकी बात नहीं, पर जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी के मेनली वो ये सोचते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर हर एक चीज का इतना सारा रूल है, कितना याद करें कितना याद ना करें। तो वो दूसरे एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागते हैं और जहां पर उनको जाके बेसिक नॉलेज ही जीवन भर मिलता है और वो कभी जो अल्टीमेट एस्ट्रोलॉजी करने का जो आनंद उनके मन में वो नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट से मैं सुन के ही आपके साथ ये मैं मेरा ओपिनियन साझा कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने लगभग 3000 से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया है। तो इसीलिए मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कुछ अलग तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ। डिविजनल चार्ट्स का कोर्स जिन्होंने करा वो जानते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक उसी तरह मैं जो D1 चार्ट है उससे भी प्रेडिक्शंस कैसे हम बहुत आसानी से स्नैपशॉट तरीके से कर पाए और एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो, उसके लिए नया कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। उस कोर्स के बारे में और जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।